Hello friends, welcome back to Com Connection. I am Devesh, your friend and tutor, and this is your lecture 3 in continuation with the lecture series of differential equations. And in the last lecture we were done up to what? Auxiliary equations, and we have also studied steps for finding auxiliary equations. There are 4 steps, and where we summed up is the rules for finding complementary function. So complementary function एक नया फंक्शन है जो हमें निकालना होता है in case in order to find the solution of differential equation of any order, say first, second, third up to nth order. Generally linear differential equation with constant coefficient. If this type of equation is given, then how to find the complementary function? सो देर आर सेवरल केसेस, बहुत सारे केसेस हैं कैसे फाइंड करते कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो चलो देखते हैं. सो केस 1, व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको निकालना बताया था लास्ट लेक्चर में. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने निकाल दी, इक्वल्स टू 0 कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किए, रूट्स निकाले उस इक्वेशन के. और अगर उसके रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, let m equals to m1, m2, m3 up to mn be the roots of auxiliary equation which are real and distinct. अगर roots real और distinct हैं, m1, m2, m3 are the roots of auxiliary equation, then the complementary function is c1 e raised to power m1x plus c2 e raised to power m2x. Let me focus. Plus c3 e raised to power m3x up to cn e raised to power mnx. तो हम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा डायरेक्ट आ जाएगा. पहले रूट्स निकालेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा. सो ये पहला केस हो गया. इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे रूट्स. नो टू रूट्स शुड बी सेम. केस 2, व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल. अगर रूट्स इक्वल हैं, let m1 equals to m2. Complementary function is given by c1x, not c1x, c1 plus c2x e raised to power m1x. And complementary function is given by c1 plus c2x e raised to power m1x plus c3x e raised to power, this is m3x plus up to nth terms. तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली हुआ क्या है, दो रूट सेम हैं. अगर दो रूट सेम है तो c1 प्लस c2x आ जाएगा e रेस टू पावर m1x. एक m1 इक्वल्स टू m2 है, तो यहाँ पे e रेस टू पावर m1x भी लिख सकते हैं या e रेस टू पावर m2x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. अगर तीन रूट सेम होते तो हमारा क्या आता, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e रेस टू पावर m1x या फिर m2x या फिर m3x कुछ भी लिख सकते थे. प्लस फिर हमारा कहाँ से शुरू होता, c4 e रेज टू पावर m4x से. तो ये हमारा कितने भी रूट्स अगर सेम हो, 5 रूट सेम है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब प्लस c5x रेज टू पावर 4. तो ये एक तरह से पैटर्न फॉलो करेंगे हम अगर कुछ रूट सेम हो, ईदर 1 रूट और 2 रूट और 3 रूट. So this is your case 2. Now let's proceed to case 3. So what case 3 says, that when two roots of auxiliary equations are imaginary. अगर दो imaginary roots आ रहे हैं, imaginary roots यानी complex roots आ रहे हैं. So let m1 equals to alpha plus iota beta, m2 is alpha minus iota beta. So these are two complex roots, and also they are alpha plus I beta, iota beta, and alpha minus iota beta, complex as well as complementary roots. तो अगर दो रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो हमारा CF क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा CF हो जाएगा c1 cos
बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स विद इन ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस फिर C3 C4 से सेम पुराना वाला पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स यानी ई के साथ हमारा रियल पार्ट आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, जब दो रूट्स इमेजिनरी हो तो। नाउ वी कम टू केस 4 when roots of auxiliary equation are repeated imaginary। अगर imaginary roots हैं equation के और repeat भी कर रहे हैं तो क्या होगा complementary function। तो complementary function तब होगा e raised to power alpha x c1 plus c2x cos beta x plus c3 plus c4x sin beta x plus c5 से as it is follow करेगा। तो ये कैसे हुआ, इस चीज़ में क्या हो गया, दो चीज़ें सेम हो गई, यानी कि दो पेयर ऑफ इमेजिनरी फंक्शंस हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, दो पेयर। यानी अगर एक अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, दूसरा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा है, ठीक है, और एक है हमारा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा और अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो यानी कि दो रूट्स यहाँ पे सेम हो गए, दो रूट्स सेम भी हो गए। तो यहाँ पे दोनों की पिछली वाली प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, कॉस बीटा एक्स और C2 साइन बीटा एक्स वाली, प्लस केस 2 की प्रॉपर्टी जो बताती थी C1 प्लस C2x वाली। तो वो दोनों मर्ज होके क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, ये तो ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स प्लस C5 से एज इट इज़ फॉलो करेगा। सो दिस इज़ योर केस 5। अब आता है केस 6। तो केस 6 में व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रिपीटेड इरेशनल, रिपीटेड भी हैं और इरेशनल भी है, यानी रूट अंडर रूट में भी कोई वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा, अल्फ़ा माइनस अंडर रूट बीटा और m1 m2 दोनों ये हैं, m3 m4 दोनों ये हैं। तो रिपीटेड भी हैं एज वेल एज इरेशनल भी हैं। देन व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, e raised to power alpha x within bracket c1 plus c2x cos h under root beta x plus c3 plus c4x sin h under root beta x। ये चीज़ याद करना, c1 plus c2x cos h under root beta x, c3 plus c4x sin h under root beta x। अल्फ़ा ई के साथ आएगा और कॉस और साइन के फंक्शन के साथ हमारा रूट बीटा आएगा, सिंस दे आर इरेशनल। एच की वैल्यू क्या होती है हम आगे बताएंगे। ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल। हियर वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देन द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम पहले क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम डी ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे और एम की फॉर्म में लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम एम क्यूब लेट डी वाई बाई डी एक्स इज एम, डी बाई डी एक्स इज एम, सो दिस इज एम क्यूब माइनस 7m माइनस 6 और ब्रैकेट में क्या हो गया y इक्वल्स टू 0 था तो y को हम हटा भी सकते हैं, हम डायरेक्ट एम क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब इसके रूट्स में स्प्लिट करेंगे तो रूट्स क्या आ गए, m प्लस 1 m प्लस 2 m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो हमारे तीनों रूट्स निकल के आ गए, इससे क्या आ गए, -1 -2 और 3, -1 -2 और -3। तो यहाँ पे रूट्स क्या हैं, अलग अलग हैं और रियल हैं। तो हमारा केस 1 के अकॉर्डिंग इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x प्लस c3 e रेज टू पावर m3x, m1 m2 m3 -1 -2 और 3।
सिंपली पुट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ गया. ओके, नाउ कम्स पर्टिकुलर सोल्यूशन. सो गाइस, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है, कंप्लीट सोल्यूशन नॉट जनरल सोल्यूशन, दैट जनरल सोल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, PI, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो अब हमारा, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके RHS में ज़ीरो है, तो अगर हमारे RHS में ज़ीरो है तो PI हमारा क्या होगा? दिस इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल, नॉट पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल PI. तो अगर RHS में ज़ीरो है, यानी कांस्टेंट टर्म में ज़ीरो, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ज़ीरो. इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ज़ीरो. ओके, सो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल ज़ीरो है, तो हमारा डायरेक्ट कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x plus c3 e raised to power 3x. So this is how we can solve a differential equation by firstly obtaining the complementary function and then generating the complete solution. एक और एग्जाम्पल है, इसमें हमें डी ऑपरेटर की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है. इसको पहले इसका हमें क्या बनाना है? पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m की फॉर्म में, m³ -3m² + 4 = 0. इसके रूट्स आए -1 2 2, केस 2 आ गया, रिपीटिंग रूट्स, तो c1 e raised to power -x, 1 वाला तो आ गया, और 2 और 2 रिपीट हो रहे हैं, तो c2 + c3x e raised to power 2x. Complementary function complete, particular integral 0 since it is a linear differential equation. So we get the complete solution as same as complementary function equated to y. Okay, so this is all for today's lecture. In next lecture we will study the rules for finding particular integral for non-differential equations, non-linear differential equation, those who have some constant, some coefficient constant, ज़ीरो ना हो, RHS में कोई फंक्शन भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है. तो we will study in the next lecture. This is all for today's lecture. Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe.